Mr. Rakesh Dubey. He is my ideal person and inspiration of my family. And the second one is my mother. My mother is very caring and loving person. My mother's name is Mrs. Anjana Dubey. My mother's love my sisters and me equally. And third and fourth one is my sister. Her name is Jaya Dubey and Neha Dubey. And fifth one is me. My hobbies are playing online game that is Free Fire, and I love and my blood group is X by Z positive, and my sun sign is Sagittarius, and my my favorite meal is dal chawal. My favorite that is what call fatty food, that is fulki, and my favorite nasta is poha, and I love to play cricket with my friends there. Thank you. Next, Namta. Namrata, Yes, ma'am. now you deliver. And guys, please switch on your camera so she can. Hello. Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity to present myself, to introduce myself in between all guys who are my batchmates in these days, online colleagues. Good evening to all. I am Namrita Dwivedi. I am from Jabalpur. Basically, I belong to Riva. Right now, I'm in Jabalpur because of my job. And now come to the graduation, means my qualification. So I did my graduation and post graduation uh, from Riva University, and then I have done my PhD in biotechnology. And after this, I have joined here. So right now I'm doing this job as a researcher. Now come to the family. Uh, Five member in my family. Uh, who apart from parents, uh, one sister and one brother. One younger sister, her name is Nidhi, and one younger brother, his name is Ritesh. My sister is doing preparation of a competitive exam, and my brother is engineer. And, both are loving means because I am between, I'm among of them. Yeah, I'm between them. So I'm, I always keep my behavior very friendly to both. And right, yeah. What is my hobbies? So uh, my hobbies is dancing, uh, learning English, and doing work what I have to do, and to make my career bright. And I love to do photography because it is a most important thing. Uh, we can keep our memory, we can save our memory for a future point of view. So I love photography. So it is my most favorite hobby. And I love traveling, as I told in my last introduction, because education is not complete without traveling. We can learn very things from traveling, which we cannot get from uh, books. My sun sign is Capricorn. My blood group is O positive, and it's all about me.
Thank you so much, ma'am. Thank you, guys. Namrata di invite someone else. Sakshi, I would like to invite Sakshi to introduce herself. Hello, good evening, friend. I am Sakshi Tiwari. I belong to Patan but currently live in Jabalpur. I study in MSc first year. I have graduated in Hindi language from Jabalpur RDBB University. I live in nucleus. There are four members in my family: my father's, mother's, sisters, and me. My father's name is Mr. Ravikant Tiwari. He is farmer. My mother's name is Miss Kalpana Tiwari. She is homemaker. My sister's name is Srishti Tiwari. She is teachers and me. I am students. My blood group is O positive. My sun sign is Leo, and my favorite colors is pink and red. My favorite is Manchurians, and my hobbies are playing dances, readings. Thank you. Now, I would like to invite Nidhi Didi. Invite someone else. Sorry. Now, I would like to invite Nisha Didi. Nisha Patel. Nisha Didi. Hello guys, good evening ma'am. I am Nisha Patel. I live in Belkhara. Nisha, you are not visible. My husband name is Mr. Vineet Patel. I have two daughters. My elder daughter's name is Vadehi Patel. My young daughter's name is Pauni Patel. My blood group O positive. My hobbies are watching movie, cooking, playing chess with my daughter. My favorite color, my favorite color is pink and red. My favorite dish, dabeli. Okay, there. I would like to Neha. Invite Neha. Hello friends, my name is Neha Patel from Sahakrabarki. Um, there are 9 members in my Didi, family. your voice is just chopping and some noise is coming. Hello Some guys, network issue is there. hello guys. Uh, my name is Neha Patel from Sahakrabarki. Neha, could you reconnect your phone? I think there is some issue. What? Kya? Didi, where, put out your earphones. Can you please put out? Yeah, keep your Remove. earphone. Now speak. Hey guys, Now you are. myself Neha Patel from Sahakrabarki. There are 9 members in my family. My father
and she is and she is very religious. And had my third and fourth, my elder sister, Nisa Patel and Nidhi Patel, she is a housewife. And five and six, my name is Neeraj Patel, she is farmer. And six, my younger brother, uh, he is he is studying. Uh, seven, my grandma, she is very cute and very naughty. Eight, my bhabhi, she is housewife and very tasty food, making food. Nine, last me. My hobbies are watching TV, play game, football, carom, chess, uh, drawing, Where is where are you and dance. sitting? And my favorite color blue and red. Didi, where are you sitting? And my zodiac signs Cancer. My Uh, favorite goddess. हेलो हेलो। Name is पहले तो तुम्हारे उसमें से काफी ची की बहुत तेज आवाज आ रही थी और उसके बाद पूरा इको हो रहा है तुम्हारा। अभी शिवांग इतनी देर से पूछ रहा था वेयर आर यू सिटिंग, वेयर आर यू सिटिंग, तुम सुन नहीं पा रही थी शायद। बेटा शिवांग हिंदी में पूछ लिया करो। क्या तो तुम्हारा रिसेप्शन सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है? तुम्हारा मोबाइल के पास हो सकता है दूसरा मोबाइल रखा हो, उसको ये कहीं और रख दो। सर नेहा हम दोनों साथ में हैं अभी। अच्छा तो वो गूंजेगा ही गूंजेगा। आसपास बैठोगे, दो लोग गूगल मीट में आसपास बैठे और वो पै 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 पूरे समय करेगा। तो भैया अलग अलग हो जाओ यार, बड़े भाई। इतनी देर से बड़ी बहन। हाँ नहीं, अब वो बड़े ही भाई बोलना पड़ता है बेटा, जबलपुरिया में यही भाषा है काका। ओके गाइस, तो इन लोग को अपना कर लेने दो, जरा अलग अलग बैठ जाने दो। Shivang, tell me what is going on in your batch? Interactive and idioms are going on. Okay, how many Word meaning interactives? is How many interactives have I given you? only one interactive. And have I given you idiom? Yes, sir. One idiom also. Which interactive have I given you? Sir, you have given here you are. And which idiom have I given you? So, Varkas bicep has given. Okay, thank you. Have I given you all the meanings? Yes, sir. You have given. Okay, उनको मीनिंग वाले कॉलम में ही लिखा ना सभी ने? Yes, sir. हाँ, हम क्योंकि रजिस्टर में एक एक चीज बताते जा रहे हैं इस बैच में कि कहाँ क्या लिखना है, क्योंकि अब उस समय आएगा उसका उपयोग करने का, तो तुम लोग उपयोग कर सको। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आप अपना नोटबुक या रजिस्टर निकाल लीजिए। नम्रता, तब तक तुम ये बता दो कि इतने दिनों में कोई और ऐसा इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था जो कि लिखवाया नहीं है? दिया तो है किंतु लिखवाया नहीं है। Yes, sir. You have given a 5 to 6 interactive, which we have not written. वाओ, थैंक यू। नम्रता, हम तुमसे जानबूझ के हिंदी में पूछ रहे थे क्योंकि शिवांग इज रिलेटेड टू दिस क्लास, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग हिम इन इंग्लिश, but you are new candidate, but I will ask you in English because you are responding. Thank you. So Namrata, can you tell me the second interactive sentence? Sir, so there you are. Okay, चलो अपन इसको सेकेंड ही ले लेते हैं। नम्रता, तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि अगर इंटरेक्टिव इडियम तुम लोगों ने अपने मन से लिख लिए हैं
तो उतना फायदा नहीं होगा जितना हमारे देने के बाद होगा, क्योंकि हम उसके गर्भ में छुपी हुई बातें भी निकाल के तुम्हारे सामने रखते हैं, लिखवा देते हैं। तो दूसरा नंबर डाल के लिखना है आपको। Nisha, can you tell me what is the Hindi meaning of "so there you are"? सर ए लीजिए। Namrata, ask my question to somebody else. This is wrong answer. सर अब आई लाइन पर। Namrata, ask my question to somebody else. Good morning, Namrita Didi. Okay, Shivang, you ask my question to somebody else. Roshni Didi, what is the Hindi meaning of "so there you are"? Sakshi Didi, what is the Hindi meaning of "so there you are"? Neha Didi, what is the Okay. Hindi meaning of "so Yes. there you are"? Beta, it will do. Mute yourself. Shivang. अब आई ना लाइन पर। तुम रहन दो, द तुम लोग हिंदी नहीं, मीनिंग। अरे नहीं, रहन दो, रहन दो, रहन दो बेटा, रहन दो। तुम लोग म्यूट ही रहो, दोनों लोग, ठीक है? म्यूट रहो। नम्रता, बेटा देखना अभी शिवांग इस वाक्य, अच्छा नहीं है, अभी एकदम ऐसा नहीं करते हैं। स्पीक दिस सिंपली। So there you are. अब आए ना तुम लाइन पर। So now may I call somebody name Shivang. So there you are. अब आए ना तुम लाइन पर। साक्षी दीदी, So there you are. अब आए ना तुम लाइन पर। हेमा दीदी, सो यू आर। अब साक्षी, आर यू डन? यस सर। ओके। दीपिका, सो देर यू आर। तो अब आए ना तुम लाइन पर। हु इज रेस्ट? ओके। अब नम्रता ध्यान से सुनना बेटा, सभी लोग ध्यान से सुनना। साक्षी, दीपिका, ये तो सिंपल हमने बोल दिया, लेकिन इस क्लास पे क्या होता है, Nobody visible. यस सर, यू आर। Okay.
Shivang left the class. क्लास छोड़कर कौन चला गया? Sir, Shivang left. Sir, Shivang class छोड़कर चला गया. ओके, Sir, शिवांग इज बैक. अब हम ये प्रश्न आगे नहीं बढ़ाते, ठीक है? शिवांग बेटा, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Now you are audible to me. तो इसमें जरा क्रिएटिविटी करके बताओ. जिसको ना सुनाई दे प्लीज कम अगेन जरूर बोल दीजिएगा. शिवांग रिपीट करें. शिवांग, हियर यू गो. Neha Didi was made mistakes. So Namrata Didi was saying sorry. After some time, Neha Didi correct their mistake. So we all say, so there you are. नेहा दीदी गलती कर रही थी, नम्रता दीदी सॉरी बोल रही थी. तो थोड़ी देर बाद नेहा दीदी ने अपनी मिस्टेक सुधारी, तो हम सब ने बोला अब आई ना आप लाइन पर. दोस्तों थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस बना दिया बच्चे ने, लेकिन इन लोगों ये इस क्लास की यही प्रोसेस है कि एक दूसरे को सुन के इस तरह से धीरे धीरे बनने लगता है. लेकिन आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि मुझे भी ऐसा करना, डरिए मत. नहीं बने कोई बात नहीं. नाउ हु इज रेडी? नम्रता. I'm ready. Sir, somebody told me the east is in front of me, and I told to them, no, it is not. It's a left side. Uh, but after some time, when he really know, हाँ दोस्तों, अगर आपका मोबाइल सीधा रखा हुआ है आपने, तो आपको बोर्ड पूरा नहीं दिखाई देगा. आपको मोबाइल को क्षैतिज करना है यानी लिटा लेना है, और मेरे चेहरे पे डबल टैप करना है या उसको पिन करना है. 2 बार उंगली से आप टैपिंग करेंगे तो बड़ा हो जाएगा. मेरी वाली स्क्रीन बड़ी हो जाएगी. आप किसी के भी चेहरे पर डबल टैप करेंगे उसकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, लेकिन मोबाइल आपको तिरछा रखना पड़ेगा, सीधे में नहीं. तिरछा. वेरी नाइस नम्रता, थैंक यू. तुमने बहुत अच्छे प्रयास किया. और sir, दोस्तों can I भी. complete? हाँ प्लीज प्लीज गो अहेड. Sir, then I told to her, uh, now you, so there you are. Means किसी ने मुझसे कहा कि जो लेफ्ट दिशा है वो मेरे सामने है, और मैंने कहा नहीं वो मेरे सामने है, और उसके बाद उसने एक्सेप्ट किया कि ओके यू आर राइट. देन मैंने कहा अब आए ना तुम लाइन पे. वेरी नाइस. दोस्तों ये ऐसा करना सबके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन किसी के दिमाग में अगर कुछ आ रहा है तो प्लीज रेज द हैंड और अनम्यूट योरसेल्फ. तब तक मैं दीपिका को बताता हूँ. बेटा दीपिका, यहाँ पे हम 2 तरह की चीजें आपको प्रतिदिन देते हैं. एक कहलाता है इंटरेक्टिव सेंटेंस. यहाँ पे देखो, सबसे ऊपर इसमें तुम्हें दिखेगा टुडेज इंटरेक्टिव सेंटेंस. इसका हिंदी अर्थ होता है आज का वार्तालाप का वाक्य, यानी एक ऐसा वाक्य जो बोलचाल में काम आए उसको कहते हैं इंटरेक्टिव सेंटेंस. और उसके नीचे ग्रीन कलर से तुम्हें दिख रहा है टुडेज इडियम. इसका अर्थ होता है आज की कहावत या आज का मुहावरा. कहावत भी कहते हैं इसको, मुहावरा भी कहते हैं और लोकोक्ति भी कहते हैं. तो पिछले कुछ दिनों से हम केवल लिखवा नहीं रहे थे, अभी हमने लिखवाना शुरू किया है. तो ये दूसरे दिन का इंटरेक्टिव लिखवाया है. अभी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, लिखना जरूरी नहीं है, केवल सुनने पर और बोलने पे ध्यान दो. ओके, नाउ हु इज रेडी? कोई अगर तैयार है तो प्लीज बनाए, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं. नम्रता दूसरा बनाना चाहती हो तो दूसरा भी बना सकती हो. शिवांग तुम दूसरा बनाना चाहते हो तो तुम भी दूसरा वाक्य बना सकते हो.
चलिए, कोई भी तैयार नहीं है, जरूरी नहीं था। तो Sir, आपको ये, हाँ प्लीज नम्रता। sir, Sivang told me that the British English spoken classes is the best, and I and I replied there, no, Sivang, Jhasa classes is the best. But after he joined there, uh, and I also joined the Jha classes, and after when we met, and when he observed that my English is better than him, then I speak so clearly. सर हिंदी में भी करना है। मैं पूछ लेता हूँ, किसी को इसका हिंदी सुनना है तो वो हिंदी कर देंगी, नहीं तो कोई आवाज नहीं आ रही है हमें, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, ऐसा लग रहा है दीपिका कुछ बोलने की चेष्टा कर रही है। नो नहीं, सर, नो सर। थैंक यू, कोई बात नहीं बेटा, कोई जरूरी नहीं है। बीच में हेमा जी कुछ माइक ऑन करने की कोशिश कर रही थी, कुछ कहना चाह रही थी हेमा जी। नहीं सर, अभी नेक्स्ट टाइम बोलूंगी। हाँ, कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ सर जी। अब तुम में से कोई भी बता दे कि हमने और कौन सा मुहावरा दिया था और कौन सी इडियम दी थी जिसको अपन दूसरे दिन का मान लें। एक आध दिया था, याद करो। It is raining cats and dogs. It is raining cats and dogs. चलो इसको दूसरे दिन की इडियम ले ले। What is the Hindi meaning? Can anybody tell me? मूसलाधार बारिश हो रही है। वेरी गुड, नाइस। मैं एक चीज और बता देता हूँ, दीपिका के चलते सभी को बता देता हूँ, मैं करके भी दिखाता हूँ। मैं अपने स्क्रीन को ही मैं अभी डबल टैप करने जा रहा हूँ, तो वो मुझे बड़ी दिख रही है। अभी हमें राइट साइड में शिवांग, हेमा जी, नम्रता जी और दीपिका जी दिखाई दे रहे। अब इसके बाद भी आप अपनी स्क्रीन को जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद भी देखिए, मैं फिर से डबल टैप कर रहा हूँ, देखिएगा। और उसके बाद आप उसको उंगली से जहां पे भी ले जाना चाहें, ऊपर नीचे आगे पीछे, वो उतना हिस्सा आपको दिखने लगेगा। तो ये सुविधा का आप लाभ उठा सकते हैं। और फिर डबल टैप कीजिए तो फिर वो जूम आउट हो जाएगा, जूम इन जूम आउट, ये सुविधा इसमें है। जब तक मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि शिवांग को याद है, शिवांग इंग्लिश बोले, फिर हिंदी बोले, फिर नम्रता दीदी का नाम ले और नम्रता फिर आगे बढ़ाते जाए। It is raining cats and dogs. मूसलाधार बारिश हो रही है। नम्रता दीदी। बेटा म्यूट करने से पहले नाम जरूर ले लिया करो। और दोस्तों एक चीज और सुन लीजिए, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। अगर आपको बोर्ड विजिबल नहीं है तो आपका सीसी ऑन है ना, उसमें पूरा सही सही लिखा हुआ आ जाएगा, स्पेलिंग सही, तो उसको देख के लिख लो अपने रजिस्टर में। हाँ नम्रता प्लीज। It is raining cats and dogs. मूसलाधार बारिश हो रही है। दीपिका। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। हेमा जी, मूसलाधार बारिश हो रही है। हेमा जी। हाँ, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मूसलाधार बारिश हो रही है। नेहा जी। नेहा जी। साक्षी जी। It is raining cats and dogs. मूसलाधार बारिश हो रही है। नेहा जी। It is raining cats and dogs. मूसलाधार बारिश हो रही है। Who is rest?
Deepika ji, I'm done, Neha. Who is rest? who's rest? Sakshi is rest. I'm done, Didi. Okay, all are done. Thank you very much. Uh, Namrata, what should be the verb for pani barasna? Sir, the verb for pani barasna should be raining. थैंक यू. अब तुम यही सवाल शिवांग से करो. Sivang, what should be the verb for pani barasna? Namrata Didi, the verb should be raining or pani barasna. Sakshi Didi, what should be the spelling of raining? Rain. सब गलत हो गया है बच्चों. अब पहला सवाल साक्षी बेटा तुम हमसे कर लो, अगर याद हो तो. नहीं तो जिसको भी याद हो नम्रता और शिवांग को छोड़कर. Sir, what was the verb of pani barasna? थैंक यू. म्यूट करो. और कौन पूछेगा यही सवाल मुझसे? सर यही सवाल पूछना है, दूसरा नहीं पूछ हाँ सकते. बेटा, सेम क्वेश्चन. Okay. What should be the verb for पानी बरसना? थैंक यू. म्यूट करो पहले, फिर हम उत्तर देखते हैं. दीपिका, द वर्ब फॉर पानी बरसना शुड बी रेन. रेन. इन लोगों ने गलत उत्तर दिया था. अब दूसरा सवाल कौन सही करना चाहेगा? हाँ बेटा, दीपिका गो अहेड. What should be the pronoun in this particular sentence? वेरी गुड. दीपिका, म्यूट योरसेल्फ. दीपिका, तुम्हें ज्वाइन किए हुए मात्र 2 दिन हुए हैं, लेकिन तुम कोशिश बहुत अच्छी करती हो. और ये इस क्लास की चीजें हम इन लोगों से बोल बोल के थक गए. ये लोग हेजिटेट होते हैं, हिचकिचाते हैं, जबकि तुम भी एक छोटी सी जगह से संबंधित हो और ये लोग भी छोटे सी जगह से संबंधित है, लेकिन तुम्हारी अवेयरनेस अच्छी है. और इस क्लास में हमें कोई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए दोस्तों. आई डू नॉट वांट इंटेलिजेंस, आई वांट योर अवेयरनेस. और बच्चों, अवेयरनेस को हिंदी में कहते हैं जागरूकता, यानी आसपास की चीजों के प्रति जानकारी और अच्छे से सुनना. बस. दीपिका, तुम्हारा प्रयास अच्छा था, लेकिन वो गलत था. अब हम शिवांग या नम्रता से बोलेंगे कि वो अगला क्वेश्चन करें. What should be the Sivang, नम्रता, आप करो. Sivang, what should be the second form of rain? Namrata Didi, the second form of rain should be rain. Sakshi Didi, what should be the third form of rain? The third form, rain, should be rain. एक बार बेटा शिवांग हिंदी कर लो. दीपिका दीदी नई है ना, इसलिए हिंदी. साक्षी दीदी, रेन का तीसरा फॉर्म क्या होना चाहिए? शिवांग, रैन का तीसरा फॉर्म रैन होना चाहिए. अब साक्षी का उच्चारण काफी गलत है. अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये क्लियर दिख रहा होगा, तो मैं ये सावधानी रखता हूँ. साक्षी, जरा मेरे साथ बोलो. रा में एक ही मात्रा रे.
राम में एक ही मात्रा रे। थोड़ा सा ई बोलो, रेई रेई न। रेन। अब इसको बोलो रेंज। रेन। हाँ दोस्तों, अगर अपन गांव से हैं तो शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, बल्कि गर्व से कहो कि आप ग्रामीण हैं। आपके माँ बाप अगर किसान हैं तो और गर्व करो कि वो अन्नदाता है। लेकिन अंग्रेजी में हमें अपने ग्रामीण उच्चारण से बाहर आके उच्चारण को थोड़ा सा अच्छा करना होगा। मैं भी गांव से हूँ। शहपुरा भिटोनी नामक गांव में मेरी 1ली से 5वीं तक की शिक्षा दीक्षा शहपुरा भिटोनी में हुई थी। पहले मैं भी काय का कर रहे कहते जा रहे इसी तरह का उच्चारण किया करता था, और आज भी करता हूँ अपने दोस्तों के साथ। मोहल्ले में जो लोग इस तरह से बोलते हैं उनके साथ मैं आज भी वैसे ही करता हूँ। बट whenever it is about English, I change my accent. एंड बच्चों, अगर आपको उच्चारण सही करना है तो टीवी देखिए। You should watch TV. TV is the best way to improve your pronunciation. TV, listen TV, watch TV. इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि इंग्लिश न्यूज देखने लग जाओ, वो तो सिरदर्द होती है, बोर हो जाओगे। तो वही देखो जो तुम्हें पसंद है, आज से पहले से देखते आ रहे थे वही देखो। बस वहां जैसे ही अंग्रेजी का वाक्य आए तुरंत उसको ध्यान दो, कैच करो। सिंपल। मैंने भी ऐसा ही किया है। विशेषकर जब हीरो हीरोइन के इंटरव्यू आते हैं ना दोस्तों, वो बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि हीरो हीरोइन को देखना ही अच्छा लगता है। और आजकल तो नीचे लिखा हुआ भी आने लगा, सब टाइटल कहते हैं उसको। दे आर कॉल्ड सब टाइटल्स। अब जो आप में से किसी ने नहीं पूछा, किसी को याद हो तो पूछे, नहीं तो मैं पूछता हूँ। एक एक चीज आपने छोड़ दी बेटा। चलो मैं पूछता हूँ। हु इज रेडी टू आंसर? मैं उससे पूछता हूँ। हु इज रेस्ट टू आंसर? जो रेस्ट हो बेटा, जिसने दे दिया वो नहीं। हु इज Sir, रेस्ट? I'm rest. I am rest, sir. नेहा जी, what should be the spelling of first form of पानी बरसना? The spelling for pani barasna should be rain. Wow, thank you very much. Now, who is ready? Who is rest? Who is rest? जिसने एक भी उत्तर ना दिया हो भाई, please unmute yourself. I am rest, sir. हेमा जी, what should be the spelling of rain? The spelling for a pani barasna is rain. Wow, thank you very much. Now, who is rest? अब कोई रेस्ट नहीं है, लेकिन उत्तर मुझे अभी तक सही नहीं मिला है, तो मैं नम्रता से पूछता हूँ। नम्रता, व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ पानी बरस? Sir, the spelling of first form of Pani Barasna should be RAIN. तो देखो बच्चों, स्पेलिंग ऐसे बताते हैं। सभी बच्चे ताली बजाएंगे नम्रता दीदी के लिए। थैंक यू। स्पेलिंग ऐसे बताते हैं ना। अब नम्रता, तुम सेकेंड फॉर्म की स्पेलिंग किसी से पूछ लो बेटा। Sivang, what should be the spelling of second form of rain? Namrata Didi, the spelling of the second form of rain should be RAINED. Sakshi Didi, Sivang, complete the शिवांग, रेन की सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? Namrata Didi, rain की सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग RAINED होनी चाहिए।
Sakshi Didi, what should be the spelling of the third form of rain? Shivang, the spelling for the of third form should be RAINET. Sakshi Didi, Hindi also Sakshi Didi. हाँ शिवांग। साक्षी दीदी, रेन के थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? शिवांग, रैन के थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग RAINED होनी चाहिए। Thank you, Sakshi, and thank you for muting immediately. तुरंत अपना माइक बंद करने के लिए भी धन्यवाद। अब अगला सवाल बच्चों हो सकता है आपके लिए नया हो, शिवांग के लिए नहीं है। तो पहले हम कोशिश करते हैं नम्रता से। नम्रता, व्हाट इज रेन? Sir, rain is natural phenomena. Thank you very much. Mute yourself. Now listen carefully. I am going to ask Shivang. It is a grammatical question, but Sorry, sir. Sir, this is a noun. yes. Sorry, हम दो sir. सवाल करेंगे, हम फिर से कर रहे हैं, फिर तुम यही दो सवाल उससे करना जो उत्तर देने के लिए तैयार है। तो नम्रता, व्हाट इज रेन? Shivang, नहीं बेटा, what? हम तुमसे दो सवाल कर रहे हैं, पहले पूरा उत्तर दे दो। नम्रता, व्हाट इज रेन? Sir, rain is noun. रेन क्या है? Sir, rain संज्ञा है. थैंक यू। एंड व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ रेन? Sir, the Hindi meaning of rain is पानी बरसना. नहीं बेटा, अब सब लोग ध्यान से सुनो, हमने व्हाट्सएप में भेजा था, आपने देखा नहीं। अगर नाउन है तो उसके अंत में ना नहीं आएगा। ना जो है बेटा क्रिया की ही पहचान है, हमेशा क्रिया के अंत में ही ना आता है। आना, जाना, खाना, पीना, सोना, हंसना। और शिवांग बता रहा है सोना। तो रेन यानी यहाँ बारिश। थैंक यू हेमा जी वेरी मच, एंड थैंक यू फॉर म्यूटिंग, और माइक बंद करने के लिए भी धन्यवाद। अब हम शिवांग से पूछते हैं। शिवांग, व्हाट इज रेन? सर, रेन इज अ नाउन। रेन क्या है? सर, रेन संज्ञा है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेन? सर, द मीनिंग ऑफ रेन इज वर्षा। यस। अब दो सवाल नम्रता दीदी से। अमृता दीदी, व्हाट इज रेन? Shivang, the rain is noun. अमृता दीदी, रेन क्या है? Shivang, rain संज्ञा है. अमृता दीदी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेन? Shivang, the meaning of rain is वर्षा. अमृता दीदी, रेन का मीनिंग क्या है? शिवांग, रेन का मीनिंग वर्षा है, बारिश या बरसात. नम्रता, तुम्हें पूछना पड़ेगा बेटा कि हु इज रेडी, क्योंकि जो जवाब नहीं देना चाहता है उसको अपन जबरदस्ती नहीं करेंगे। पूछो, हु इज रेडी? Who is ready? I'm ready. Sakshi. Sakshi, what is the rain? The rain is noun. साक्षी, रेन क्या है? रेन एक संज्ञा है।
Sakshi, what is the meaning of rain? The meaning of the rain, Varsha, is Varsha. साक्षी, रेन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? रेन का मतलब वर्षा है. सर, इज इट डन? इज इट कंप्लीट? Yeah, mute, sir. Who is rest? साक्षी बेटा पूछो एक बार, म्यूट करके बैठ गई, प्रोसेस से कैसे कैसे बाहर चली जा रही हो? साक्षी, हेलो साक्षी, आर यू देयर? Who is rest? I am rest. दीदी, what is rain? Rain is a noun. दीदी, rain क्या है? Rain एक संज्ञा है. दीदी, what is meaning of rain? The meaning of rain is वर्षा. दीदी, rain का मतलब क्या है? रेन का मतलब वर्षा है. Who is rest? नेहा I'm rest. पटेल. I'm rest. Okay, दीपिका शुक्ला जी. What is rain? The the rain is noun. Sorry. The rain is noun. Sorry. हेमा जी, हेमा जी, am I आपने audible? पहली बार सॉरी बोला, उसके लिए मैं तालियां बजा रहा हूँ. सॉरी बोलना इस क्लास में प्रोग्रेस का बहुत अच्छा संकेत माना जाता है. अगर कोई सॉरी बोल रहा है मतलब वो जागरूक है, पूरी तरह से सुन रहा है, वही सॉरी बोल सकता है. तो दीपिका मैं बता दूं, उनका सॉरी सही है. दा नाम का आर्टिकल साक्षी ने भी गलत जगह ही लगाया था, तो तुमने उसको सुन के गलत जगह लगा दिया. हेमा जी, आप हमसे पूछ लीजिए, फिर मैं पूछ लूंगा दीपिका से. जी सर. सर, what is rain? Rain is a noun. What is the meaning of rain? गंदी बात ऐसा नहीं करते. कंप्लीट द प्रोसेस. Okay सर. सर, रेन क्या है? रेन एक संज्ञा है. ओके सर. सेकंड क्वेश्चन भी आपसे करूँ सर? ओके. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेन? बिल्कुल सही सवाल. आपको मिलते 7.5 करोड़. द मीनिंग ऑफ रेन इज बरसात, बारिश अथवा वर्षा. नाउ सर, रेन की मीनिंग. हाँ थैंक यू. सॉरी कैरी ऑन. सर, रेन की मीनिंग का मतलब क्या है? रेन की मीनिंग का मतलब है बारिश, वर्षा अथवा बरसात. थैंक यू सर. वेलकम. म्यूट योरसेल्फ. थैंक यू. दीपिका, व्हाट इज रेन? Rain is a noun. दीपिका, रेन क्या है? Rain एक संज्ञा है. वेरी नाइस. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेन? The meaning of rain is वर्षा. एवं रेन का बारिश अर्थ अथवा क्या बरसात. है? रेन का अर्थ वर्षा, बरसात अथवा बारिश है. वेरी गुड. आगे वाला एक ही बोलना, वो तो मैंने समझाने के लिए तीनों लिखे इसलिए बोल दी. दीपिका पूछो, हु इज रेडी? Who is ready? I'm ready. Okay. Neha, what is a rain? Rain is a noun.
रेन क्या है? रेन रेन एक संज्ञा है। Okay, next question is, what is the meaning of rain, Neha? द मीनिंग ऑफ रेन इज बारिश। रेन का मतलब क्या है? रेन का मतलब बारिश है। Okay. थैंक यू। इज रेस्ट हु इज रेस्ट? निशा दीदी। जब पता है तो काय पूछ रहे हैं, गन्ना? सर हाँ। व्हाट इज द रेन? दरिन ऐसा नहीं बोलते बेटा, गंदी बात। सर कैसे पूछेंगे? शिवांग बताएगा। नेहा दीदी, what हम उंगली ऐसे कर करके बुलवा रहे हैं। what was not speaking, sir. व्हाट Is इज a आ rain. रेन? What is the सॉरी शिवांग, सॉरी बेटा। नम्रता? Neha, you should call a name first. Nisha, नेहा, नम्रता दी, नम्रता जी बोल रही हैं कि पहले किसी का नाम पुकार लो तो वो आगे का सेंटेंस तुम्हें बुलवा देंगे। ओके सर। साक्षी जी, व्हाट इज अ रेन? लो, गई भैंस पानी में। व्हाट इज Neha, रेन? अरे वो अपना माइक चालू करके बेटा तुम्हारे इंतजार में बैठी हैं। और साक्षी जी, वाह, साक्षी जी, कितने सारे बच्चे हैं, वाह 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 वाह। इसलिए तो म्यूट बैठी रहती और दिखती भी नहीं है, पीछे से बच्चे दौड़ लगाते रहते। चलो अब क्या करें बताओ, चलो हम ही पूछ लिए थे, अब कोई बचो ही नहीं आए थे तो नोबडी इज रेस्ट। दोस्तों चलो हम शिवांग से पूछते हैं। शिवांग, हैव यू रिटन दिस? Yes, sir. I have written it. क्या आपने ये लिख लिया है? हाँ सर, मैंने वह लिख लिया है। प्लीज गो अहेड। अमृता दीदी, have you written that? yes, Shivang, I have written it. नम्रता, एक छोटी सी चीज देखना बेटा, यहाँ पे तुमने ध्यान नहीं दिया, बाकी ने तो बिल्कुल ही नहीं दिया होगा, फिर से देखना। एक शब्द का अंतर हो रहा है जो कि शिवांग जानता है अच्छे से। लिसन केयरफुली। शिवांग, हैव यू रिटन दिस? Yes, sir. I am written that. क्या आपने ये लिख लिया है? हाँ सर, मैंने वह लिख लिया है। नम्रता, दिस का प्रयोग पास के लिए होता है और दैट का प्रयोग दूर के लिए। तो ये मेरे पास है इसलिए मैं दिस बोल रहा हूं, और शिवांग से दूर है इसलिए वो दैट बोल रहा है। दैट दिस, दैट दिस, इतनी सी बात। शिवांग का मतलब। अमृता दीदी, have you written that? Yes, Shivang, I am written that. अमृता दीदी, क्या आपने वह लिख लिया है? हाँ शिवांग, मैंने लिख लिया है। Sakshi, have you written this?
Yes, Didi, I've written that. Come again, Sakshi. Yes, Didi, I have written that. साक्षी, क्या Sorry. तुमने यह लिख लिया है? हाँ दीदी, मैंने यही लिख लिया है। Emma, you are written that. Come again, Sakshi, your voice is chopping, and please speak up. Emma, you are written that. I have written that. जी, Sakshi, क्या your आपने question is. लिखा है? हाँ, मैंने लिख लिया है। दीपिका जी, have you written? Sir, who is rest? Sir, what is the I'm right rushed. answer? I have Neha ji. written या I am written? Okay. Neha ji, have you written this? Sorry. Have you written that? Yes, I am written that. No, sorry. बहुत बढ़िया हेमा जी, वेरी गुड, आपकी प्रोग्रेस दिखने लगी है, बधाई Thank हो। you, sir. मिठाई व्हाट्सएप कर दीजिएगा। Okay, sir. Yes, Neha I ji, have. Yes, have you written that? yes, I have written that. Thank you. Please complete the process. हेमा जी, कंप्लीट द प्रोसेस। सॉरी सर। हाँ, क्या आपने लिख लिया? हाँ, मैंने लिख लिया है। Who is rest? क्या लिख लिया? वह क्या आपने वह लिख लिया? हाँ, मैंने वह लिख लिया। Who is rest? Armrest. Deepika. Deepika ji, you have written that. Sorry. Sorry. अरे सही तो पूछ रहे, का है सॉरी बोले? देखो हम उससे पूछते हैं। नेहा, योर नेम इज नेहा? Yes, sir. अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था। नेहा, Deepika ji, you have वाह। written. नेहा, योर नेम इज नेहा? नेहा, योर नेम इज नेहा? नो, योर नेम इज नेहा। आई थिंक योर नेम इज नेहा। दोस्तों, actually this is not your mistake. Namrata, listen this thing. Everybody listen. This is the drawback of our educational system. हमें कभी बचपन में शायद हो सकता है हिंदी में भी प्रश्न करना सिखाया ही नहीं गया है। प्रश्न किसे कहते हैं हमें ये पता ही नहीं है, क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर यही करते हैं। एक बिल्कुल कॉमन उदाहरण देख लेते हैं। जैसे माँ पूछती है, बेटा खा लिया? जैसे थाली साफ होती है और बेटा हाथ धोने लगता है तो माँ पूछती है, बेटा खा लिया? अब भाव बस प्रश्न का रहता है, लेकिन प्रश्न नहीं करती। फिर वो पूछती है, नहा के निकला? बेटा नहा लिया? प्रश्न नहीं कर रही, बेटा नहा लिया। स्कूल से लौटा बेटा आ गए? और अगर बेटा बोलते नहीं अभी हम रास्ते में हैं, ये मेरा भूत है, तो ये चांटा पड़ेगा, जुबान लड़ाता है। मतलब हमने जीवन में प्रश्न करना सीखा ही नहीं। वी डोंट नो व्हाट इज क्वेश्चन। तो नेहा बार बार बता रही है दीपिका को, पूछ ही नहीं रही है वो,
बता रही है बार बार। तो अब दीपिका क्या करे? मैं पूछती हूँ। तो चलो दीपिका, तुम ही नेहा से पूछ लो बेटा। नेहा, have you written that? Yes, I have written that. Sorry. I have written that. Sorry. गुड सॉरी, वेरी गुड सॉरी दीपिका, वेल डन। अब दीपिका तुम्हें हम मदद करने की अनुमति देते हैं। बिना अनुमति के इस क्लास में मदद करोगे तो 20 का दंड लगता है। दीपिका तुम समझाओ नेहा को कि कोई भी उत्तर शुरू करने से पहले 2 में से कोई एक शब्द तो लगाना ही पड़ता है, उसको बताओ हिंदी में। Okay. Your answer should be I am written that. Okay. और जब आप अरे नहीं पूछोगे बेटा, ये गलत कर दिया तुमने। कोई बात नहीं, लेकिन तुमने कोशिश अच्छी की। हमारा संकेत नम्रता तुम समझ गई? जरा हिंदी में बताओ कि नेहा, बताओ। क्या आपने लिख लिया है? नहीं बेटा, नेहा आंसर देते समय, अभी दीपिका ने सही क्वेश्चन किया, लेकिन नेहा आंसर देते समय एक शब्द जो शुरू में बोलते हैं ना, चलो हम हिंदी में लिख के बता दे रहे, वो अक्सर वो खा जाती है। या तो हाँ से उत्तर शुरू होता है, या कम से कम इन दोनों में से कोई एक लेटर तो हम सामने रखेंगे ही ना, उसके बाद बाकी का जवाब देंगे। तो वो ये पहला शब्द रखती ही नहीं। एक तो वो प्रश्न भी नहीं करती, और उत्तर देते समय कई बार ये वाला शब्द या तो वो नहीं रखती है, या वो पहले दे देती है और उसके बाद टच करती है माइक को। ऐसा होता है, और उसका कारण समझ लो। उसके यहाँ हो रहा है खूब शोरगुल, पूरे समय बच्चे खेल रहे हैं, तो वो बड़ी डरी हुई सी अपना माइक बहुत लिमिटेड समय के लिए ऑन करती है, तो अपन लोगों को हाँ या ना सुनाई ही नहीं देता है। ये भी कारण हो सकता है। दीपिका तुमने सेंटेंस को गलत कर दिया बेटा। अब हम एक काम करते हैं दोस्तों, नेहा की स्थिति तो बहुत विषम है, बच्चों की बहुत शोरगुल की आवाज आ रही, तो वो बेचारी बोल भी नहीं पा रही। नेहा पूछोगी कि आज की क्लास समाप्त करें? हेलो। Yes, sir. Deepika ji, have you written this? Yes, Neha, I'm written that. दीपिका Yes, जी, Neha. वह हो गया? हाँ नेहा, मेरा हो गया, मैंने लिख लिया। एक कहावत है, आप लिखे खुदा बाँचे। मस्त, बढ़िया है बेटा। सीसी ऑन है कि ऑफ है दीपिका? ऑफ है सर। बहुत सही, वही तो। बीच में मैं लेफ्ट हो गई थी, इसलिए सुन नहीं पाई सर। कोई बात नहीं, चलिए अब हमें ये रोज ही करना है, रोज का काम है। 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज का, अपने को रोज ही करना है, तो डोंट वरी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टाइम इज अप, गिव मी परमिशन टू गो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। अरे यार सर, Thank you, sir. Good evening. Good night, sir.